नमस्कार, मैं वकार। स्वागत है आपका CCL ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। हम बात करते लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई आइसोलेटेड कंडक्टर है, कोई आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है, उसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? स्फेरिकल कंडक्टर। ध्यान से देखना यहां पे, दिस इज स्फेरिकल कंडक्टर, देयर इज स्मॉल q चार्ज इज अवेलेबल ऑन द surface of this sphere and its radius is capital R. Charge is small q. Now we calculate the capacitance. Our topic is capacitance. What is the formula of capacitance? C equals to q upon V. Then what is the formula of V? What is the electric potential on the surface? Electric potential on the surface is kq upon capital R. We also know that we discuss this thing in chapter number 3. Now equation first, this is equation second. Now we get from equation first and second, what we get? C equals to q upon V, kq upon R. Then q is cancelled to each other. C equals to R upon k. What is the value of k? 1 upon 4 pi epsilon naught. Then put the value of k in this equation. C equals to 4 pi epsilon naught upon R upon 1. Clear? Then what is the value of k? 1 upon 4 pi epsilon naught. Then 4 pi epsilon naught are shifted to upper side. Then we get C equals to 4 pi epsilon naught R. So we can say that from this equation, capacitance is directly proportional to radius of the sphere. Clear? Then our next topic is capacitance. What is capacitance? But before that, we discuss about some important things in that topic. What is important thing? We know that C equals to 4 pi epsilon naught capital R. This is in vacuum. So what we get in medium, what we get in dielectric constant in this equation. So relation between Cm and C naught. Cm is dielectric, Cm is capacitance in medium, and C naught is capacitance in vacuum. So what is the relation between that? So we know that C naught equals to 4 pi epsilon naught capital R. Equation number first. Now in medium we get Cm equals to 4 pi epsilon m capital R. Equation number 2. Now from equation first and second, we get C naught upon Cm. So what is the value of C naught? 4 pi epsilon naught capital R upon 4 pi epsilon m R. For cancel out, R is cancel out. Now we get C naught upon Cm equals to epsilon naught upon epsilon m. Clear? So we also know that dielectric constant. What is the dielectric constant? Dielectric constant is epsilon R equals to epsilon m upon epsilon naught. So now from this equation we can write this equation, this form: Cm upon C naught equals to epsilon m upon epsilon naught. So it is the equal of epsilon R. So we can get this value, this relation bit from this equation: epsilon R, epsilon m upon epsilon naught equals to epsilon R. Sorry, Cm upon C naught equals to epsilon R. This is the relation between Cm and C naught. Now our next topic is capacitor. So what is the capacitor? Capacitor is a storage device which store the electric charge. Simply
then when we increase the charge of plate, then also increase the potential between the plate. Next topic is capacitor. Capacitor is a device which is stored the electric charge. In simple form, what is capacitor? Capacitor is a device which is store the electric charge. Clear? Then next point we consider in this topic. What is the next point in this topic? Next point is when we increase the charge of the plates, then increase the potential of the plates. Clear? कोई भी ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के बीच में अगर हम यहाँ पे चार्ज देते हैं, कोई बैटरी के थ्रू यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड कराते हैं, तो ये जो बैटरी ये चार्ज है यहाँ पर मान लीजिए पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ेगा, जैसे जैसे इन प्लेट्स का जो चार्ज इंक्रीज होगा, उसके लिए हम बात करें तो चार्ज इंक्रीज होगा तो सिंप्लीफाई हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या बढ़ेगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में क्या इंक्रीज होगा, पोटेंशियल। सो वी कैन से दैट फ्रॉम दिस डायग्राम Q proportional V. When we increase the charge, then also increase the potential parallelly. कि अगर हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल भी उसके पैरेलली क्या होता है, इंक्रीज होता है। यही से हमारा फॉर्मूला आया था, मतलब इक्वल्स टू CV, और C इक्वल्स टू हमारा यही पढ़ा था Q अपॉन V. क्लियर? Then what is the symbol of capacitor? There is two symbol. First is this and second this is second. Clear? A and B. This is constant capacitor. It means यहाँ पर हम कोई जो उसका चार्ज होगा उसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब इसका जो पोटेंशियल होगा या फिर इस जो एक फिक्स है ये, इसको हम चेंज नहीं कर सकते कि भाई ये अगर यहाँ पे 2 माइक्रोफेराड स्टोरेज होगा तो 2 ही होगा, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। मतलब इसका जो फिक्स है कांस्टेंट कैपेसिटर, ये वेरिएबल है। यहाँ पे जो चीजें हैं वो चेंज हो सकती है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, इसको 2 माइक्रोफेराड भी कर सकते हैं, 3 माइक्रोफेराड भी कर सकते हैं। क्लियर? तो ये हमारे क्या हो गए, 2 सिंबल्स हो गए। हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि one is constant capacitor and second is, या ये बोल सकते हो आप constant capacitance। कैपेसिटर का जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कैपेसिटेंस होती है। और यहाँ भी NC कैपेसिटेंस, कांस्टेंट कैपेसिटेंस। जो कैपेसिटर तो एक डिवाइस है और फिर उसके अंदर जो मतलब कहते हैं ना, उसको हिंदी में धारिता बोलते हैं, वैसे यहाँ पे वो कैपेसिटेंस होता है। तो वेरिएबल कैपेसिटेंस है, इसमें कांस्टेंट कैपेसिटेंस है। ठीक है? हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। तो आप सीखेगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। बहुत सारे लोगों की, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी होती है कि सर ये जो प्रिंसिपल होता है उसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को प्रॉपर सही तरीके से देखते हैं तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, कि कैपेसिटर का जो प्रिंसिपल था वो क्या है। ठीक है? अब ध्यान से देखना, सुनना मेरी बात। हमारे पास कोई चार्ज है, कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सा समझना ध्यान से। ये हमारा फिगर फर्स्ट है और इस फिगर फर्स्ट के अंदर हमने एक कंडक्टर को लिया और उस कंडक्टर का नेम है A, और ये इस पर हमने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया। अब क्या होता है कि इस कंडक्टर के पास एक हम दूसरी प्लेट लेके आते हैं, इसके इक्वल साइज के लेके आते हैं, और अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो आप ये समझ सकते हो कि जो दूसरी प्लेट होगी उस पर पहले कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं था, लेकिन जैसे इसके पास हम उस प्लेट को लेके आते हैं तो वहां पर पोलराइजेशन हो जाता है, इसका मतलब वहां चार्ज आ जाता है। कैसे? ये हमने पढ़ा था इंडक्शन मेथड में, चैप्टर नंबर 1 के इंडक्शन मेथड में पढ़ा था। वहां हमने क्लियर किया था कि अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज बॉडी के पास अनचार्ज बॉडी को लाया जाता है तो अनचार्ज बॉडी के अंदर पोलराइजेशन होता है, मतलब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, माइनस चार्ज डेवलप हो जाएगा, और वो इक्वल अमाउंट में हो जाएगा। इधर कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो, अब पोलराइजेशन हो गया। ठीक है? अब मेरी बात ध्यान सुनना कि प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल ये है कि अगर किसी पर्टिकुलर कंडक्टर के पास चार्ज अवेलेबल है, उसको चार्ज हम देते जा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है
कि वहां और चार्ज हम उसको नहीं दे सकते, हम उसको ज्यादा चार्ज फिर नहीं दे सकते। ये कौन सा है हमारा फिगर 2 है। अब कंडीशन ये है कि हम उसको और चार्ज नहीं दे सकते, इसका मतलब उसका पोटेंशियल मैक्सिमम हो गया और वो चार्ज नहीं ले सकता। तो हम एक कंडक्टर लेके आते हैं और जैसे उसके पास हम एक कंडक्टर लेके आते हैं तो उसके यहाँ पे नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव जब यहाँ पे होगा तो वो कुछ यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ कोई चार्ज है तो उसको क्या करेगा, कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। तो कैंसिल आउट जैसे ही वो करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर जो चार्ज पोटेंशियल है वो इसका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब अब यहाँ इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं इसका मतलब इसके पास चार्ज और हम ला सकते हैं इसमें चार्ज और, इसको हम और चार्ज दे सकते हैं। तो मेरी बात समझना कि अगर हम यहां से इस पॉजिटिव को खत्म कर दें तो यहाँ पे नेगेटिव और ज्यादा हो जाएगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव बचेगा तो भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव को तो फिर भी रिपेल कर रहा है, नेगेटिव तो चल अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन पॉजिटिव तो रिपेल कर रहा है, इसका मतलब वो कम। लेकिन अगर थर्ड फिगर में क्या करते हैं कि हम इसके पास यहाँ पॉजिटिव प्लेट है फर्स्ट वाली, और इसके जो सेकंड प्लेट है जिसको हमने प्लेट बी बोला है, ये प्लेट ए है, जो सेकंड प्लेट है, सेकंड बी प्लेट है, उस बी प्लेट को हम अर्थ करते हैं, मतलब अर्थ कर देते हैं पर्टिकुलर किसी एक ये जो प्लेट है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पर अर्थिंग कर दिया। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो क्या चला गया सारा, इसका मतलब जो इसके दुश्मन थे, इस चार्ज का जो दुश्मन था वो तो रहा नहीं, और ये जो इसके प्यारे प्यारे बचे, इसका मतलब यहाँ पे जो इसका जो कैप्स मतलब इस पे जो और चार्ज हम ला सकते हैं, इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, और पोटेंशियल डिक्रीज होते हैं इस पर हम और चार्ज ला सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कैपेसिटर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर किसी पर्टिकुलर चार्ज प्लेट के पास किसी अनचार्ज या अर्थड प्लेट लेके लाई जाए तो उस कंडक्टर का या फिर उस वायर का हम क्या बढ़ा सकते हैं, वो उसकी कैपेसिटेंस बढ़ा सकते हैं, मतलब उसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है, मतलब उसको चार्ज और बढ़ा सकते हैं तो इससे क्या बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। क्लियर, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल है, जो आपके ये इनके जो मैंने समझा है उसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, और यहाँ पे जो आपके नोट्स है वो आपको किस में मिल जाएंगे, पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक है, हम मेरी ये कोशिश है कि अब जो थोड़ा ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हुए, मतलब उस वक्त को थोड़ा बचाते हुए मैं इन चीजों पे ज्यादा टॉपिक पे कंसंट्रेट करूं। तो जो नोट्स है वो तो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, और आप अगर समझ गए हैं तो डेफिनेटली आप सेल्फ भी नोट्स बना सकते हैं, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक बार फिर से बता दूं, सबसे पहले हमने कंडक्टर लिया, उस पर पॉजिटिव चार्ज दिया, लेकिन एक टाइम ऐसा जाता है कि उसका जो पोटेंशियल है वो हाई हो जाता है और वो चार्ज और लेना बंद कर देता है। तो हम क्या करते हैं, उसके पास एक दूसरी प्लेट लेके आते हैं, प्लेट बी लेके आते हैं। जैसे ही प्लेट बी लेके आते हो तो इसके अंदर पोलराइजेशन हो जाता है, इसके एक साइड पॉजिटिव हो जाता है, एक साइड नेगेटिव हो जाता है, इधर साइड पॉजिटिव हो जाता है। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इसको रिपेल नहीं करता है, अट्रैक्ट करता है, और ये इसको रिपेल करता है। तो जो पॉजिटिव है वो तो इसको परेशानी करेगा, नेगेटिव परेशान नहीं करेगा। इसका मतलब इसमें से कुछ अट्रैक्शन चला गया, कुछ अट्रैक्शन इसका मन इधर लग गया, तो इसका मतलब यहाँ पे किसी हम और चार्ज को बढ़ सकते हैं और चार्ज ला सकते हैं, तो इसका मतलब इसका पोटेंशियल डिक्रीज हो गया। पोटेंशियल डिक्रीज होते ही ये और चार्ज लेने स्टार्ट कर देगा, इसका मतलब इसके अंदर चार्ज स्टोरेज और बढ़ गई। फिर हम क्या करते हैं कि अगर इस वाले कंडक्टर को हम अर्थ सरफेस कर देते हैं, मतलब अर्थ कर देते हैं, तो यहाँ से जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड अर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बचेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज बचेगा, और नेगेटिव चार्ज बचते हैं इसका जो पोटेंशियल है वो फिर से डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हम इसमें और फिर जो चार्ज इसको और चार्ज हम दे सकते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़े, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर के बिहाफ पे कैपेसिटर या टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो हम अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो वहां पे सिंपल सा है कि जो कैपेसिटर है उस पे उसके जो टाइप्स, कितने टाइप्स का होता है, तो यहाँ पे देयर इज 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर on the basis of shape of conductor, clear? So first is, second and is third. First is parallel capacitor, and second is spherical capacitor, and third is cylindrical. But in this chapter we discuss about only 2 types, not is 3 types. So firstly, what is the parallel capacitor? Parallel capacitor
समझना मेरी बात ध्यान से। मान लीजिए कोई दो प्लेट है जिनको हमने इस सिचुएशन में रखा हुआ है, ये कोई दो प्लेट है हमारी और उसको हमने इक्वल साइज की है, इस तरीके से हमने उसको अरेंज कर दिया। अब इन दोनों प्लेट्स को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा है। जैसे ही हमने इसको बैटरी के साथ ऐड किया है, मतलब कनेक्ट किया है, बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको पता है कि एक पे तो पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव आया क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं भाई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है। अब जितने इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, चार्ज आ गया। अगर यहाँ चार्ज स्मॉल q है, प्लस है, तो यहाँ पे माइनस q है। चार्ज का अमाउंट इक्वल है, चेंज नहीं होगा, नेचर दोनों का अलग अलग है, ठीक है। उतने यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोल सकते हो आप इसको, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब मेरी बात ध्यान सुनना कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसको हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन तो क्लियर हो गई कि व्हेन जब कोई दो प्लेट्स को इस तरीके से इस अरेंज में रखा जाता है जहां पर उन दोनों का जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड तो इक्वल हो लेकिन उसका जो नेचर वो अपोजिट हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलते हैं। अब दूसरी बात जो है हमारी, उसको समझना मेरी बात, सेकंड थिंग को, कि हम इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर हमें सी कैलकुलेट करना है। बात वही सी की जाती है। तो टू कैलकुलेट कैपेसिटर, सी इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू अपॉन वी। सिंपल, हमने क्यू अपॉन वी पढ़ा हुआ है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे हमें वी का रिलेशन निकालना है। अब वी का रिलेशन निकालना है तो वी इक्वल्स टू होता है ई डॉट डी। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज प्लेट्स। अब सर कह रहे हो ये कैसा है भाई, इसको निकलने के लिए अपन यहाँ पे नोट लगा लेना। और सिंपल सा मैं तो लिख रहा हूँ कि v हमने पढ़ा था के क्यू अपॉन आर और e पढ़ा था हमने के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर इसकी टर्म्स में अगर यहाँ पे अगर आर स्क्वायर को मैं आर डॉट आर लिखूं तो यहाँ पे इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर को हम v पुट कर सकते हैं। तो e इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v अपॉन आर। तो इसको v इक्वल्स टू e डॉट r लिख सकते हैं। r क्या थी यहाँ पे, डिस्टेंस थी, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे d। तो v इक्वल्स टू क्या हो गया, e डॉट d। तो पुट द वैल्यू ऑफ e डॉट d, देन वी गेट c इक्वल्स टू q अपॉन e डॉट d। नाउ व्हाट इज द वैल्यू, अब इन दोनों देखो यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव है तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो E होगा, और जहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हम उसको लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन दिस प्लेट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर, पुट द वैल्यू ऑफ, ये मैं हटा रहा हूं यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ E in this equation, then we get C equals to Q upon summation एप्सिलॉन नॉट और D। ठीक है, अब व्हाट इज द सिग्मा, व्हाट इज द सिग्मा, सिग्मा इक्वल्स टू Q अपॉन A। पुट द वैल्यू ऑफ सिग्मा इन अबव इक्वेशन, Q एप्सिलॉन नॉट Q A अपॉन D। देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन एप्सिलॉन D। C is the capacitance, epsilon naught is the permittivity in vacuum, A is the area, P मतलब permittivity in vacuum area, और D is the distance between plate। क्लियर, ये फॉर्मूला है यहाँ से। अब चाहो तो यहां से एक रिलेशन निकल सकता है, वो क्या है, E प्रोपोर्शनल A। अगर हम एरिया को बढ़ाते हैं, सॉरी C प्रोपोर्शनल A, तो इसका मतलब अगर हम एरिया इंक्रीज करते हैं तो क्या इंक्रीज होगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। और अगर हम C इनवर्सली प्रोपोर्शनल D, अगर डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो C क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसको हम इंक्रीज करते हैं, इसको इंक्रीज करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर है उसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ तो मीडियम था, कौन सा अपना, यहाँ कौन सा मीडियम था, वैक्यूम मीडियम था। अब इस वैक्यूम मीडियम के अंदर हम कोई पार्शियली इसको फिल कर सकते हैं। जब हम इसको पार्शियली फिल करेंगे तो हमारा डेरिवेशन क्या होगा, उसके लिए हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज हम इसी टॉपिक पे सिर्फ यहाँ तक बात कर रहे थे। थैंक यू सो मच।